السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ویسے تو ہم اس پروگرام کے ذریعے بڑے شہر کے نوحے آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں میں ناظرین کے ساتھ ساتھ متعلقہ وہ اتھارٹیز بھی ہوتی ہیں، جہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان شہریوں کی بات پہنچے کہ ان کے ساتھ کیا مسائل کا سامنا ہے، کس طرح دونوں ہاتھوں سے مافیا جو ہے وہ لوٹ رہا ہے اس پورے کراچی میں۔ جہاں مختلف مافیاز کی بات کرتے ہیں، وہاں لینڈ گریبرز جو ہے وہ ایک بہت بڑا مافیا بتایا جاتا ہے، جس نے اس شہر کے ان لوگوں کو جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں بیلٹنگ کر کے انہوں نے اپنی زمین لی مختلف جگہوں پر اور ان پر قبضے کر لیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایم ڈی اے نے یہ ڈنڈا اٹھایا ہے لینڈ گریبرز کے خلاف، اور اٹھانا جب آپریشن شروع کیا ہے تو اس کے اندر بھی اب ہنگامہ آرائی دیکھی جا رہی ہے، پشت پناہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اتنے مضبوط لینڈ گریبرز ہیں کہ وہ پتھراؤ نہیں کرتے، صرف فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، کتنے بڑے پیمانے پر یہ قبضہ کیا گیا ہے، کس طرح آپریشن کیا جائے گا، اس پوری تفصیل پر جو منتظر شہری ہیں بالخصوص جنہوں نے یہاں پر اپنے اپنے پلاٹ بک کرائے ہوں گے، منتظر ہوں گے کہ شاید ان کو ان کی چیز، ان کے پیسوں سے لی ہوئی چیز، قانونی چیز جو ہے ان کو واپس مل سکے گی، ان تمام کے لیے آج کا سیگمنٹ رکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈی جی ایم ڈی اے نسیم صاحب۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے، ایک اہم ایشو ہے یہ۔ ہم پہلے یہ چاہیں گے کہ کتنی بڑے رقبے پر محیط یہ لینڈ ہے جس کو قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جی کافی سالوں سے یہ لینڈ گریبنگ چل رہی ہے اور مختلف ناموں سے یہ کرتے ہیں، اور اب جو ہے یہ نئی لینڈ گریبنگ ہو رہی تھی اور لوگوں نے نئے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے مختلف سیکٹرز میں، 19 میں، 18 میں۔ سیکٹر 19 سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پھر مختلف یہ لوگ پہلے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ان کے سرگنا ہیں، جو رپورٹڈلی کوئی شاہ صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی کئی ایک ایف آئی آر بھی کٹے ہوئے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو کارروائی ہوئی اس میں پولیس اور اینٹی انکروچمنٹ سیل ہمارے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی۔ ہم نے میکنائزڈ جتنا بھی ہمارے پاس ریسورس اویلیبل تھا اس کو بھی موبلائز کیا ہوا تھا، اور ٹریکٹرز اور باقی چیزیں جو ہیں جو کہ اینٹی انکروچمنٹ میں استعمال کی جاتی ہیں اس میں تھی، اور ہمارے لوگ بھی تھے، ہمارا مین پاور بھی تھا۔ انجینئرنگ نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اگر تھوڑی سی یہاں پہ چونکہ لا اینڈ آرڈر پہ بڑی سینسٹیو ہے پولیس، وہ اگر کریٹ ہو جائے تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہے اور پھر ہمیں بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ ادروائز تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے اینٹی انکروچمنٹ کو ختم کرنا۔ نسیم صاحب میں جاننا چاہوں گا ابھی ہنگامہ آرائی کس بات پہ ہوئی، کون لوگ تھے ہنگامہ آرائی کرنے والے؟ یار ہنگامہ آ رہی اس بات پہ ہوئی کہ آپ لوگ آپریشن کیوں کر رہے ہیں، بس سمپل، اور کوئی بات کیا ہوتی ہے بھائی۔ اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس واقعے کے اندر جب اتنا بڑا معاملہ ہوا، فوٹیجز ہماری اسکرین پر ہیں، اطلاعات کے مطابق کوئی واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ نہیں جی، مقدمہ درج ہوا ہے۔ ہمارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے یقیناً پہلے بھی کئی ایک مرتبہ انہوں نے مقدمات ایف آئی آر یا این سی کٹوائی ہوئی ہیں لوگوں کے خلاف، اور آج پولیس چونکہ خود آپریشن میں شامل تھی تو انہوں نے ایک آدھ اریسٹ بھی کیا تھا، لیکن مجھے پھر بعد میں بتایا گیا ہے کہ شاید لوگوں نے، یہ موب نے نارتھرن بائی پاس کو بلاک کیا، اور پھر وہ بلاک کرنے کی وجہ سے شاید پولیس تھوڑی سی کمپرومائز کر گئی یا ان کو چھوڑ دیا اس کو جس آدمی کو اریسٹ کیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال کیس نہیں نسیم صاحب، ان کو، ان ملزمان جو کہ پکڑے گئے تھے، جو خلل ڈال رہے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا پولیس کی جانب سے؟ دیکھیں جی، وہ مجھے بتایا گیا ہے، میں تو نہیں تھا ادھر، مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے نارتھرن بائی پاس کو چونکہ روڈ کو بلاک کیا اسی پبلک نے، یہ جو یہاں سے گئے نارتھرن بائی پاس کو بلاک کر دیا انہوں نے، پھر بعد میں جب کہ سنا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا بندے۔ اچھا نسیم صاحب، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیے گا، یہ کون سا اسکیم 45 کا کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر کس لیول کی انکروچمنٹ ہو چکی ہے، قبضہ ہو چکا ہے؟ سیکٹر 19 میں آج ہم نے کیا تھا اسٹارٹ آپریشن، لیکن مختلف سیکٹرز میں جو ہے 18 میں بھی ہے، اور مختلف یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ کوئی کنٹیگوس کوئی ایک چھوٹا سا ایک گاؤں ہے یا جو بھی نیا انہوں نے بنایا، باقی جو بھی نئی انکروچمنٹ ہو رہی ہے وہ ہٹ میٹ سے جو بنا رہے ہیں، کپڑے سے بنا رہے ہیں، کوئی ادھر، پھر بعد میں وہ ہٹتے جاتے ہیں۔ فی الحال تو ایسے ہی انہوں نے اسکیٹرڈ کیا ہوا تھا جو کہ ہم نے توڑ دیا۔
नसीम साहब, ये पूरा जो माफिया है इसमें कौन कौन लोग मुलव्विस हैं, कुछ के नाम आप जानते हैं? भाई साहब ये तो अब पुलिस बता सकती है कि कौन कौन इसमें मुलविस है, इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके। लेकिन ये है कि जो भी होते हैं हम नोटिस लगा के वहाँ पे करते हैं। आम बजाय तो गरीब से लोग जो होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं, औरतों को भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, उनकी आड़ में। उन टेंट के अंदर रखते हैं। बजाय तो वो एक ह्यूमन इशू पैदा करने की कोशिश करते हैं कि देखें जी बड़ा इंसानी मसला हो गया पैदा, लेकिन एक्चुअली होते तो कोई और है ना इन्वेस्टर पीछे। बिल्कुल ऐसा ही है, कब्ज़ा माफिया मुनज़्ज़म है। हमने तो माजी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और रिपोर्ट की है मुख्तलिफ अपने प्लेटफॉर्म्स पे। और हम ये जानना चाहते हैं कितनी मालियत की ये ज़मीन होगी जिस पे इस वक्त तक कब्ज़ा है एमडीए का, डी साहब? जनाब ये फिलहाल तो असेस करना अभी तो जिन लोगों ने किया हुआ है तो जाहिर है 300 एकड़ के करीब जमीन जो है वो इंक्रोच 300 एकड़ की सर 300 एकड़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी कब्ज़ा हो गई है? 300 एकड़ से ज्यादा इन्होंने कोशिश करी हुई है, कोशिश कर रहे हैं, और हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि इनको नाकाम बनाएं। और नाकाम? आज का ऑपरेशन उसका सिलसिला था, और हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। फिर हम दोबारा जो है इसको ऑपरेशन कराएंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की मदद से हम दोबारा इनको करेंगे, और हम इस पर बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, लेटर्स भी लिखे गए थे डीआईजी वेस्ट को भी और मुख्तलिफ लोगों को भी, तो उस पर क्या समझते हैं, क्या राय आपकी कि क्या मजबूत ऑपरेशन हुआ है या कहीं ना कहीं खलल है? तो अगर खलल है तो वो क्या है? लेकिन बात ये है कि ऑपरेशन तो ठीक हुआ था, लोग वहाँ से एक तरह से फायर करते हैं और फायरिंग प्रॉपर तरीके से हो रही थी और रोड ब्लॉक करते हैं। तो अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी मेरे ख्याल में हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सोचना पड़ेगा। पुलिस के साथ रेंजर्स को भी आप लोगों ने खत लिखा है सर? जी हमने लिखा तो था सबको, अपने डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा था, लिखा तो हमने था और हम अभी भी लिखेंगे। लेकिन बेसिकली तो जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, पुलिस की है। रेंजर्स को सपोर्ट के लिए उनको बुलाना चाहिए। और नसीम साहब देखें, बड़ी मुश्किल से लोगों ने प्लॉट्स लिए होंगे, बैलेटिंग के ज़रिए उनके नाम पर ये चीज़ें हैं सारी। इस शहर में आप क्या समझते हैं जिस तरह ये किस तरह लोगों को लूट लिया गया एक तरह से, जिनके प्लॉट पे कब्जा हो जाता है? नहीं है इसमें दो राय नहीं है कि ये लोगों से ज्यादती है। लोगों के प्लॉट हैं, लोगों के पैसे हैं जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट की वजह से डूब जाएंगे। फिर ये बेचारे बोलेंगे अल्टरनेट प्लॉट, अल्टरनेट के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है। यही ज़मीन है जिसको हम अगर बचाएंगे तो लोगों की ज़मीन बच जाएंगे, प्लॉट बच जाएंगे। आप पर उम्मीद नज़र आ रहे हैं सर कि आप इस ज़मीन के टुकड़ों को बचा पाएंगे जो आम आदमी के हो? देखें जी, सच्चाई की बुनियाद पर अगर हम बात करें, देखें बात ये है कि बिल्कुल उम्मीद अगर नहीं होती तो हम ऑपरेशन ये नहीं करवाते, और हमें एक सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है, और हम सस्टेन्ड एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सब मिलके। नसीम साहब एक शहरियों के जहनों में भी एक बहुत सादा सा सवाल उठता है। वो कहते हैं कि इतने सारे इदारे हैं, पुलिस भी है, इलाकाई थाना भी है, एंटी इंक्रोचमेंट भी है, आपका इदारा भी है। जब इतने बड़े पैमाने पर ये जो कब्ज़ा किया जा रहा होता है उस वक्त ये इदारे कहाँ मसरूफ़ होते हैं? ये सवाल है, एक सादा सा सवाल है, हर शहरी जो अपने जहनों में उठाता है। देखें काली भेड़ें हर जगह पे हैं। इदारे अगर अपना काम करें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इतना इंक्रोचमेंट। बहुत ज़बरदस्त नसीम से, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं ना कहीं काली भीड़ें हैं, तो ये काली भीड़ों ने कितना नुकसान पहुंचाया होगा सर अब तक? सिर्फ मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें, सिर्फ मलीड को नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, और ये जो इंक्रोचमेंट हुई है यकीनन सर लाखों की ज़मीनें थी, कुछ करोड़ों की थी, क्या होगा, क्या फिगर आप कोट करेंगे? कई सालों से देखें, कई सालों की कहानी है ये जनाब, कई सालों की। बिल्कुल ऐसा ही है, कई सालों में, और कई सालों से वो एक्यूमुलेटिव आपको अभी जो नजर आ रहा है ना, वो एक एक्यूमुलेटिव फैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन हम जो कर सकते हैं अभी हम कर रहे हैं, और सीएम साहब भी हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं उसमें। सीएम साहब खास इंटरेस्ट ले रहे हैं इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, और उनकी बड़ी उसमें हमारे साथ ताउन है और उनकी रहनुमाई है। तो सीएम साहब अगर इसी तरह से माशाल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो हम यकीनन बहुत कुछ कर सकते हैं। बस नसीम तो आखिरी सवाल में ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी मालियत कितनी होगी, थोड़ा सा बता सकते हैं? लाखों में होगी? ये मालियत वैल्यूएट करना थोड़ा सा मुश्किल यूँ हो जाता है कि ज़मीन की वैल्यूएशन तो अभी कोई किसी ने की नहीं है। मैं आपको ऐसे ही कप मार दूँ कि इतने की, जो ज़ाहिर है प्लॉटिंग की हुई थी। सर एक आइडिया, एक अंदाजे के मुताबिक कि एक प्लॉट कितने का होगा? यार मैं सॉरी, मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगा। मैंने आपको एकड़ के हिसाब से नहीं होती है, प्लॉट वाइज ज़मीन होती है, फिर उसमें एमिनिटीज होती हैं, फिर उसमें रोड्स बनने होते हैं। जब कोई स्कीम आती है ना तो उसमें
तकरीबन ऑलमोस्ट 50% उसको उसकी कमर्शियल वैल्यू होती है और उसी पे वो शिफ्ट होती है उसकी एमिनिटीज की कॉस्ट भी, ठीक है ना। तो अब जाहिर है अगर इंक्रोचमेंट होगी तो एमिनिटीज भी चली जाएंगी, कोई वहाँ पे पार्क बनना होता है, कहीं हॉस्पिटल बनने होते हैं, कहीं मस्जिद बनने होते हैं, वो सब नहीं बन पाएंगे, ये कच्ची आबादियाँ बन जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और है कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं जो कि पुष्ट पनाही कर रहे हैं सारे मामलात की, उसके ऊपर जैसे आपने भी जिक्र किया कि उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं और वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई मजबूत कार्रवाई आप समझ रहे हो रही है? और क्या उनके जो मुकदमात हैं तो वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे, इसके ऊपर कोई बिल्कुल कमेंट मैं करें? समझ रहा हूँ कि जिस तरह हम अपना एक्शन कर रहे हैं उसी तरह सबको करना चाहिए। और अभी तो हाई कोर्ट ने भी कई एक ऑर्डर्स किए हुए हैं इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, तो हमने उस दिन शाह लतीफ़ में भी एक एक्शन किया था, वो आपकी शायद नज़र से नहीं गुजरा। लतीफ़ में भी हमने वहीं पे भी इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की थी और हम कामयाब हो गए थे। वो इतने इस लेवल पे नहीं था, छोटी लेवल पे था, लेकिन मजीद जहाँ जहाँ हो रही है हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाके बहुत ज़्यादा इंक्रोच हो चुके हैं और उसके लिए फिर वो कोर्ट से स्टे ले आते हैं, कोर्ट एक तरफ इंक्रोचमेंट हटा के लिए भी बात कर रही होती है और कहीं लोगों को स्टे दे के फिर भूल जाती है या हमारे इदारे पे उसको ज़्यादा स्टे को वेकेट नहीं करा पाते। ये दोनों सूरतों में चल रहा होता और ये रुकावट किस सतह की है, किस लेवल की रुकावट का सामना करना पड़ रहा है? है। यार ये मैं समझ रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, ये कोर्ट में प्लीड करने की कोशिश है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। अगर हम सिंसियर होकर एफर्ट करें और अगर सारे इदारे अपना काम करेंगे, रियासत से ज़्यादा स्ट्रांग कोई भी नहीं होता भाई, हम लोग तो इंडिविजुअल। मगर बदकिस्मती है नसीम साहब कि हमें तो यहाँ पर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि यहाँ पर माफियाज हमें स्ट्रांग नज़र आते हैं। एकड़ों की बात हो रही है, एकड़ों की ज़मीन पर कैसे इतनी आसानी से कब्जा हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं गुजारिश करूँ, माफिया भी किसी न किसी इदारे के बलबूते पे ये काम कर रही होती है, तो उनका एहतिसाब क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास एंटी करप्शन नहीं है, हमारे पास तहकीकाती इदारे नहीं हैं जो ये एहतसाब हो रहा है, एहतसाब होना चाहिए और अभी भी इदारे अपना एहतसाब कर रहे हैं। लेकिन अब ये आप पॉलिटिकल साइड पे चली जाएगी बात और कहीं पे कभी पॉलिटिकल विल होती है कभी नहीं होती है, बस मसला ये है। मगर आप पर उम्मीद है इस निगरान सेटअप के दरमियान आप अपने जो कुछ ना कुछ लोगों को हुकूक है वो दिला पाएंगे? मौजूदा गवर्नमेंट से उम्मीद रखता इसलिए हूँ कि सीएम साहब ने बहुत हमें सख्ती से ऑर्डर दिए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें सख्ती से बोला हुआ है कि इंक्रोचमेंट को हटाएं और जो इलीगल काम है इसको रोकें। तो जब पॉलिटिकल विल होती है तो सारी फिर मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने बहुत बड़ा जुमला दे दिया कि पॉलिटिकल विल होनी ज़रूरी है और इस वक्त हमें पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है। यकीनी तौर पे देखने वालों में वो मुतासरीन भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपने प्लॉट इस उम्मीद से लिए होंगे कि शायद किसी दिन हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे, शायद हम अपनी फैमिली को यहाँ पर आबाद करेंगे, शायद हम अपना मुस्तकबिल अपने बच्चों के लिए यहाँ पर संवारेंगे, यहाँ पर कुछ दिन कुछ वक्त और कुछ ये गुजारेंगे। मगर देखें आप इस शहर की बदकिस्मती, इस शहर के कितने नोहे इस प्रोग्राम के जरिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता हूं और क्या बता रहा होता हूं कि देखिए तो कि कंसर्न अथॉरिटी बता के जा रही है कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है वो इंक्रोच कर दी जाती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उम्मीद से हैं, मगर बात यह है कि जिन शहरियों की ये ज़मीनें हैं, जिन्होंने किस तरह नौकरियाँ कर करके पैसा पाई जोड़ जोड़ के इधर अपनी ज़मीन इतना प्लॉट बुक कराया होगा इस उम्मीद पे कि सरकार है, सरकारी इदारे, सरकारी ज़मीन है, मगर उसके बावजूद कितना जुल्म है ये नाजरीन। सोचे तो अफसोस होता है कि उसके बावजूद इतने बड़े लेवल पे जो है वो ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं। और जब आज ऑपरेशंस का आगाज़ हो रहा है, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ी ज़हमत का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पुलिस जो है वो उस जगह को अपने आप को महफूज रखने के लिए जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है, फायरिंग हो जाती है, लाठियाँ पत्थर जो है वो चल जाते हैं और एक बार फिर जो ऑपरेशन होता होता है वो फिर एकदम से बंद हो जाता है और फिर दोबारा कोशिश की जा रही होती है। ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि कराची की आवाज़ बन सकें, हम यहाँ पर कराची वालों के मसाइल को सामने रख सकें। और जिस तरह DGMDA, क्योंकि हमने खुसूसी तौर पर इनसे दरख्वास्त की कि आएँ बताएं क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह ऑपरेशन होंगे, इतने बड़े करोड़ों रुपए की बात हो रही है कि
پوری لینڈ جو ہے وہ قبضہ ہو چکی ہے ناظرین۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، مگر ہم اس پروگرام کے ذریعے صرف اتھارٹیز تک بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے اس شہر کے اندر کس طرح سلسلہ چل رہا ہے، کس طرح مافیاز جو ہیں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، کس طرح اس وقت متعدد مقدمات میں ہونے کے باوجود بھی وہ آزاد گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہوگا، اور جس طرح ڈی جی ایم ڈی اے نسیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ سی ایم صاحب مقبول باقر صاحب بہت سنجیدگی دکھا رہے ہیں، تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ شہریوں کا یہ جو مسئلہ ہے، ان کا قبضہ ہے، ان کا حق ہے جو شہریوں کا، وہ ان کو واپس مل سکے گا۔ ناظرین بریک پہ جا رہا ہوں، بریک پر واپس آتے ہیں، پھر ایک اور سٹوری ہے افسوسناک، وہ بھی ڈسکس کرنی ہے۔